नहीं
ठीक है, बंद कर दूं कॉल? लो। Good morning, sir. Morning, morning. Bhavi sir, good morning. Yeah, good morning. Very good morning, sir. Am I audible? Yeah. Sir, let us wait for 2-3 minutes. Yeah, fine. Fine with me. No problem. Yeah. Let people. Yeah. Now 64 participants have joined. Right. Let us wait for 5 minutes, then we'll start. Sure. Yes. What should be the medium of talk, in Hindi or English? Sir, anything, sir. Sir, आप चलेगा. whatever you are comfortable. हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा. No problem. मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ. ऑडियंस के हिसाब से ज्यादा अच्छा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर. ऑडियंस इज वेल कन्वर्सेंट विद इंग्लिश, हिंदी, ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. राइट. तो कोई इश्यू नहीं आएगा. ठीक है, तो इंग्लिश में करता हूँ. बीच में हिंदी झांक. या फिर if you want you can go in mixed mode, blended mode, sir. हिंदी इंग्लिश ऐसा कीजिए. इंग्लिश. Sure. Blended mode. Thank you, sir. Thank you. Okay, sure.
Sir, shall we start? Yeah, we can. Sure. Yeah. Very warm and heartful and cheerful morning, sir. We welcome you on behalf of TBI. Hope you are keeping safe. Sir, there are some basic instructions that need to be followed by the audience. So they are listed below. Please keep your mic and camera off during the session. Do not present anything. If you have any questions, feel free to ask them in comment box. Now, I would like to request Jigisha Lonare to start her introductory session. Jigisha, take over. Yes. Hello everyone. I welcome everyone on behalf of the TBI Foundation and Student Representative Council of Sri Ramdev Baba College of Engineering and Management to today's webinar on managing mental health in Corona outbreak. First of all, I would like to thank all of you who took out the precious time to join us in this webinar. I hope that you will enjoy the session. My name is Jigisha Lonare. It is my great pleasure to introduce to you our speaker, Dr. Sudhir Bhave. Sir is a renowned psychiatrist in Nagpur. He has been in practice for more than 30 years. Sir has completed his MBBS and MD from PGI Chandigarh and trained in Manchester, UK in child psychiatry. Sir has also been teaching at Department of Psychiatry at NKP Salve Institute of Medical Sciences. Sir is the guide and examiner for MD Psychiatry in Maharashtra University of Health Sciences. Sir is an illustrious psychiatrist and has many academic honors to his claim. Sir is the holder of the Nagpur Bhutan Award for Professional Social Excellence. Sir is National Chairman in Specialty Section on Cyber Psychology and Mental Health. If psychiatry is his profession, music is his hobby. Sir has won 8 first prizes in various prestigious vocal music competitions in different parts of the country. Sir has played a key role in increasing mental health awareness in Central India. We are very pleased to have you, sir. Thank you for accepting our invitation. Now, I would like to request Dr. Y.M. Sonkhaskar, Dean of Student Representative Council, to welcome Dr. Sudhir Bhave. Hello, am I audible? Yeah, surely. Sir, you are not audible. Sonkhaskar, sir. There might be some technical issue. Jigisha, you continue. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible now. Yeah. Sorry for the trouble. There was some technical glitch. So, very good morning, Dr. Bhave, sir. Very good morning. Yeah, good morning. Thank And you. also, a good morning to all my dear participants and student coordinators. On behalf of TBI Foundation and Students Representative Council of Sri Ramdev Baba College of Engineering and Management, I, Dr. Yashwant Sonkhaskar, Dean Student Representative Council, welcome you all to this webinar entitled Managing Mental Health in Corona Outbreak. It is indeed our pleasure to have Dr. Sudhir Bhave, sir, as a speaker for this webinar. So once again, thank you so much, sir, for sparing your valuable time to guide us through this webinar. So without taking much of your time, now I honestly request Bhave, sir, to begin to proceed for his session. Thank
Thank you one, thank you all. Over to Sure. you, Bhavesh sir. Sure, sure. Thank you, Thank you. Somkha sir. And thank you, Jigisha, for doing more than justice to my biodata. Thank you, sir. Yeah. Friends, it's not only great pleasure, but a great honor for me to come here and talk to you. I think some of your faculty might remember that I had been to your college long back to talk personally to students. But I think in these Corona times, this is perhaps the best option. I know fully well that I am talking to the students of one of the best engineering colleges in Nagpur, and that adds to my pleasure. I have been in discussion with Anubhav Pachauri, and I was going to understand that I kind of divide my talk into two portions. One is mental health in general, like how to be mentally healthy. And second was something on Corona times, how to cope with the Corona times. So now, coming to the first part about the mental health. Now, how to be mentally healthy is a very, very big topic. And in fact, this is something that takes sometimes not only hours, but days of discussion. So I thought that maybe I can summarize what I think are the important things in this topic and try to convey to you as to what my years of practice as a psychiatrist and decades of graying and falling hair have told me. First off, at the outset, let me tell you that being mentally healthy and happy at all times is impossible. There is nothing like a perfect mental health. It's completely all right to have times when you are not feeling okay, you are feeling depressed, you are feeling low, you are feeling anxious, you get irritable, you feel jealous, you get angry, and so on. Because these are normal human emotions, and all of us are likely to experience them. In fact, let me tell you that when I read the biographies or autobiographies of great men, even sadhu, sannyasis, saints, they often mention कि फला फला सन्यासी कैसे बहुत गुस्सा हो गए और कैसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए. In fact, I was reading Swami Vivekananda's biography, and towards the end, the author had emphasized significantly कि उनके लाइफ के एंड में स्वामी विवेकानंद कितने चिड़चिड़े हो गए थे और कैसे शिष्यों को डांट फटकार देते थे. तो जब ऐसे आदमी का ये हाल है, तो I think it's quite understandable that we all go through these ups and downs. I think the crux of the matter lies in the fact कि भले ही अपना मूड ठीक ना हो, भले ही हम ठीक न महसूस कर रहे हो, it's completely natural. But what is important is to come out of it as early as possible. अगर मैं गुस्सा होता हूँ, it's completely alright. It's human to get angry. But then the question is कि मैं कितना गुस्सा होता हूँ और कितनी देर गुस्सा रहता हूँ, अपना गुस्सा कैसे व्यक्त करता हूँ, how do I express it? So I think negative emotions are given, they are going to happen, but how to minimize them, how to keep yourself reasonably mentally healthy. मैं reasonably कह रहा हूँ क्योंकि perfectly mentally healthy रहना impossible है. मेरे लिए भी possible नहीं रहा है और मैं sure हूँ ये किसी के लिए भी possible नहीं है. So how to maintain reasonable mental health? मैं अक्सर कहता हूँ कि there are 5 golden rules for a good mental health. अब ये 5 golden rules क्या हैं? पहला है, कुछ बातें हो सकता है आपको लगे तो बहुत बेसिक है, लेकिन लाइफ में बेसिक बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं. हम सबने ये पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ द ट्रूथ्स आर द सिंपलेस्ट, है ना. जो बड़ी बड़ी सच्चाइयां होती हैं, बड़ी बड़ी हकीकतें होती हैं, दे आर द सिंपलेस्ट वंस. So what I am saying might seem quite intuitive, quite simple, but then, as I said, simplicity में ही divinity है. पहला रूल है of having a good sleep every night. Sleep is an extremely important human or animal activity, which is not only important for your physical health, but also for your mental health. It's a given. आजकल के ज़माने में sleep has become a casualty. With the, I think you're all engineering students. ऐसा कहते हैं कि when Thomas Alva Edison invented the electric bulb somewhere in 1870s, human sleep went for a toss. क्योंकि जहां अपने लाइफ में आर्टिफिशियल लाइट आई, our sleep cycle decreased, उतना सोना कम हो गया. जो
20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज होती थी. They used to sleep for 8 hours, 9 hours every night. But how many of you can really get that amount of sleep? It's quite difficult. आजकल सेलफोन ने तो और एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है कि ऐसी ऑलमोस्ट एवरीवन बिफोर बेड टाइम सेलफोन देखते हैं. कई हम में से जो कम समझदार हैं वो सेलफोन लेके बेड में जाते हैं. रात को जरा पिंग हुआ कि फट से फोन उठा के देखेंगे किसका मैसेज आया है. लेट मी टेल यू कि अच्छी नींद के लिए जो 2-4 रूल्स हैं, उनमें से एक रूल तो ये है कि गेट अप एट अ फिक्स्ड अर्ली टाइम एवरी डे. फिक्स टाइम यानी उठने का टाइम बहुत चेंज ना हो. कभी 7 बजे उठ रहा हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 6 बजे, ऐसा ना हो. लेट इट बी अ फिक्स टाइम, लेट इट बी एन अर्ली टाइम. इवन दैट्स इंपॉर्टेंट. अब साइंटिफिकली हर चीज का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाऊंगा, उतना टाइम नहीं है, बट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ नॉर्मल स्लीप साइकिल. सो गेट अप ए फिक्स्ड अर्ली टाइम डेली एंड बिफोर बेड टाइम इंडल्ज इन अ रिचुअल. और कैसा रिचुअल कि कम से कम सोने के 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन ऑफ हो जाने चाहिए एज फार एज पॉसिबल. कभी कभार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एज फार एज पॉसिबल सोने के 1 घंटा पहले ऑल स्क्रीन शुड बी ऑफ. लैपटॉप्स, मोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, television, tablets, everything should be off. Now you are engineering students and I think some of you might be knowing that all these screens, they emit something called blue light. Light का जो electromagnetic spectrum है, उसके short wave end पे we have blue light. I think you all know that, physics. And this blue light, it suppresses the sleep inducing hormone in the brain. And it suppresses that for at least 2 hours. यानी मैं अगर रात को 12 बजे तक मोबाइल देख रहा हूं तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि दैट हार्मोन गेट्स सप्रेस्ड एंड आई स्लीप मच लेटर देन व्हाट आई शुड बी. तो एक पूरी दुनिया में एक साइंटिस्ट का रिकमेंडेशन है कि सोने के 1 घंटा पहले ऑल दिस शुड बी ऑफ एंड कीप योर सेल फोन आउटसाइड द बेडरूम. मैं मेरा खुद का बताता हूं कि जैसे मैं करीब 11 बजे सोता हूं, तो 11 बजे सोना है तो मैं करीब 10 के आसपास मेरा सेल फोन बिल्कुल ऑफ कर डालता हूं, यानी वाइब्रेट भी नहीं होगा. ऑफ करके उसको रूम के बाहर रख देता हूँ. एंड देन वी शुड फॉलो अ वाइंडिंग डाउन रूटीन. वाइंडिंग डाउन यानी कैसा कि सोने के पहले अगर कुछ पढ़ते हुए बैठे, भले ही पढ़ाई हो, तो उसे सुस्ती जल्दी आने लगती है. रीडिंग फ्रॉम अ बुक एंड व्हेन यू फील ड्राउजी गो टू बेड. ओके. कैफीन, निकोटीन, इसका इस्तेमाल कम से कम हो. कॉफी अगर लेते हैं, आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा दैट टी शुड बी अवॉइडेड आफ्टर 5 PM and coffee should be avoided after 1 PM, यानी दोपहर को 1 बजे. अब आजकल कॉफी का बड़ा चलन है, दिस ओवर कॉफी, दैट ओवर कॉफी, CCD एंड कैफे, अलग अलग शॉपीज होते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कॉफी इज ए स्टिमुलेंट ऑफ द ब्रेन. इट एक्ट्स फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours. और खासकर जिनको नींद का प्रॉब्लम है, हम में से सबको नहीं होता है. हम में से कई लकी लोग ऐसे हैं कि वो हाथ में सेलफोन लेके भी लुढ़क जाएंगे एंड सो जाएंगे. रात को 10 बजे कॉफी पियेंगे, 11 बजे सो जाएंगे. बट दिस अप्लाइज टू द मेजॉरिटी दैट डोंट हैव कॉफी आफ्टर 1 PM इन द आफ्टरनून एंड नो टी आफ्टर 5 PM इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्लीप. कई बार ये होता है कि नींद लग तो जाती है, लेकिन नींद की क्वालिटी खराब होती है. कई लोग, मेरे कई क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 7 बजे चाय पीता हूँ लेकिन नींद आ जाती है. सो मेरा उनको ये बताना होता है कि नींद तो आ जाएगी, लेकिन जितनी गहरी आनी चाहिए, नींद का जो आर्किटेक्चर होता है वो गड़बड़ रहेगा. टेकिंग अल्कोहल रेगुलरली ऑफ कोर्स इम्पेयर्स स्लीप. तो जितने अल्कोहल लेने वाले होते हैं उनको मेरा बहुत क्लियरली बताना होता है कि आपको भले ही लगता है कि ड्रिंक्स लेके नींद आ जाती है, लेकिन ड्रिंक्स बेसिकली नींद को नुकसान करते हैं. सो आई थिंक हैविंग अ गुड स्लीप कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड. आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जैसे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी मेमोरी है, आपकी चीजें ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी है, चीजें सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द गुड स्लीप. और खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत जरूरी है. मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद रहना बहुत जरूरी है. मैं जब स्टूडेंट था मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैं अपने कई लेक्चर्स में बताता हूँ. मैं थोड़ा पढ़ाकू टाइप का था. मैं सुबह 3 बजे का अलार्म लगा के उठता था डेली. 9 बजे सोता था और 3 का अलार्म लगा के उठता था. और बाद में जब मैंने मेडिसिन ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि जो अर्ली मॉर्निंग की नींद होती है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेमोरी.
यहाँ मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं कि नींद के अलग अलग फेजेस होते हैं, REM, NREM, और जो REM फेज होता है विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिमिलेशन ऑफ मेमोरीज, वो सेकेंड हाफ में होता है। तो बहुत जल्दी उठना, अलार्म लगा के उठना शुड बी अवॉइडेड। तो ये नींद का इंपॉर्टेंस है। मेरा एक पेशेंट था, कहता है डॉक्टर साहब नींद लेना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? अरे बोले डॉक्टर साहब नए जमाने में तो ऐसा होता है कि एकता कपूर जल्दी सोने नहीं देती और रामदेव बाबा जल्दी उठा देते हैं। so, what he meant was कि रात को सीरियल देखते देखते देरी हो जाती है और सुबह फिर योगासन और प्राणायाम करने के लिए उठना पड़ता है। तो ये एक नए जमाने की देन है। सो always remember that sleep is extremely important. The importance of that can't be underemphasized. And in student days, we need at least 7 to 8 hours of sleep every night. Take it from me. Second is for mental health, exercise. अब एक्सरसाइज का संबंध हम लोग हमेशा फिजिकल हेल्थ से जोड़ते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट एक्सरसाइज हैज गॉट मेनी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। मैं इसमें दो बताऊंगा मेनली। पहला है कि एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अगले कई घंटों तक यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स बेटर। सो अगेन, not only for students but even for seniors like me, exercise is very important if we need to function well intellectually. And secondly, exercise has a significant effect on your mood. एक्सरसाइज से एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, मूड थोड़ा अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से आप में से जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्सरसाइज के बाद ऐसा 2-4 घंटे बड़ा लाइट लगता है, अच्छा लगता है। और किसी दिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा अनमना सा लगता है यू आर मिसिंग समथिंग। सो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं अर्ली मॉर्निंग क्यों कह रहा हूँ, उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं, खासकर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, वो कई घंटों तक रहते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तो अगर आप शाम को एक्सरसाइज करेंगे तो ये होगा कि आपको वो बेनिफिट हार्डली 2-3 घंटे ही मिलेगा जब आपको सोना है। मॉर्निंग में करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकेंडली, एक्सरसाइज से अगर मॉर्निंग में मूड इंप्रूव होता है तो हू डज नॉट वांट दैट? यानी मैं चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ माय डे शुड बी स्पेंट इन अ गुड मूड। सोने के जस्ट पहले एक्सरसाइज किया तो पैराडॉक्सिकली नींद कम हो जाती है। दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। एक्सरसाइज सोने के कम से कम 2-2.5 घंटे पहले तक नहीं करना, उसके भी साइंटिफिक रीजंस हैं, बट नींद कम होती है। तो एक्सरसाइज शुड प्रेफरेबली बी इन द मॉर्निंग। और एक्सरसाइज है कौन सी? अब एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, आई थिंक यू हैव हर्ड दैट। एक को हम लोग एरोबिक कहेंगे, एक को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहेंगे। स्ट्रेंथनिंग यानी वेट्स उठाना एंड जहां जहां पावर अपना यूज करना पड़ता है। एंड एरोबिक इज वन जहां जैसे कार्डियो होता है, हम लोग में से कई लोग जिम में जाते हैं तो जो कार्डियो करते हैं दैट्स एरोबिक। और जो मैंने एडवांटेजेस बताए हैं, एडवांटेजेस फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस एंड मूड, दे आर डिराइव्ड मोर फ्रॉम द एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज। यंगस्टर्स में आजकल स्ट्रेंथनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल्स बनाने होते हैं, बॉडी बनानी होती है। बट लेट मी टेल यू दैट एरोबिक गिव परहैप्स बेटर एडवांटेज देन द एनएरोबिक या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो सेकंड गोल्डन रूल इज कि डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का एक रूटीन बना लें। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आधा घंटा कम से कम निकाल सकते हैं कि आप एरोबिक यानी कैसा, आई थिंक यू नो दिस, कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रोप स्किपिंग, यानी जिस एक्सरसाइज में हार्ट बीट तेज हो जाए, अपना सांस तेज चलने लगे और पसीना आए, तो दैट्स बेसिकली एन एरोबिक एक्सरसाइज। तो सेकंड गोल्डन रूल इन इज एक्सरसाइज। थर्ड इज मेडिटेशन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये इतने सीनियर आदमी को बुला लिया, अब ये मेडिटेशन वगैरह क्या बता रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू दैट मेडिटेशन जितना कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड देने वाली दूसरी एक्टिविटी मेरी जानकारी में नहीं है। साइंस इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर एक्टिविटी दैट कैन गिव दैट काइंड ऑफ पीस। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप उतना समय निकाल पाओ तो डेली कम से कम अगर 20-25 मिनट आप मेडिटेट करें, तो जैसे मैंने एक्सरसाइज से कहा और स्लीप से कहा, वैसे ही कई फिजिकल और साइकोलॉजिकल फायदे मेडिटेशन के होते हैं। अब मेडिटेशन कैसे किया जाए, ये बहुत लंबी स्टोरी है। मेडिटेशन के कई एप्स आते हैं, हो सकता है आप में से कईयों ने देखे हों।
YouTube पे अगर आप जाते हैं तो मेडिटेशन के कई तरीके दिखाई देंगे। मेडिटेशन के बेसिक्स कॉमन है, सिंपल है। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेडिटेशन दैट कैन हेल्प। सो आई एम रीजनेबली सर्टन कि अगर आप कोई मेडिटेटिव ऐप डाउनलोड करते हैं 20, 25, 30 मिनट की अगर है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेडिटेशन करने से अपने दिमाग में नेगेटिव इमोशंस कम होते हैं, इवन फिजिकली यू गेट बेटर। I have known of people whose serious medical illnesses have been cured by meditation. सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट मेरे सामने मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि ऐसी बीमारियां जिनके पास मॉडर्न साइंस के लिए कोई इलाज नहीं है, they have slowly improved and completely got cured with meditation. So that is one thing that I very strongly suggest. बहुत लोगों की ये मान्यता होती है कि अरे यार ये अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ये सब बुढ़ापे में करने की चीजें हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, मैं दिल से काफी यंग हूँ, अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, हालांकि आई एम मोर टुवर्ड्स द बूढ़ा साइड, दैट दीज थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, सो द थर्ड थिंग वाज मेडिटेशन। चौथा है स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस एज फार एज पॉसिबल। आई थिंक ये फिर से कॉमन सेंस वाली बात है, और मैं किन एडिक्शन से आपको खासकर दूर रहने के लिए कहूंगा। वन इज ऑफ कोर्स निकोटीन। निकोटीन टेकन इन एनी फॉर्म, it harms not only physically, also harms you mentally. Nicotine is known to create more of anxiety symptoms, more panic attacks, more of restlessness, more sleep difficulties. तो भले ही तंबाकू चबाने वाला हो या बीड़ी हो, सिगरेट हो, भले ही हुक्के में लिया जाए, I think nicotine is something that should be completely avoided. मेरे कई मरीज मुझको पूछते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत स्मोक किया तो चलेगा क्या, एक सिगरेट डेली ली तो चलेगा क्या, मैं हफ्ते में केवल 2 दिन लेता हूँ। एंड मैं किसी को प्लेजरेबल चीजों में मना करना पसंद नहीं करता हूँ जनरली, बिकॉज लाइफ के भी कुछ अपने प्लेजर्स होते हैं, बट दिस इज वन प्लेजर दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी अवॉइडेड। क्योंकि स्मोकिंग का ऐसा है कि इवन अ स्मॉल क्वांटिटी कैन हार्म। अगर आप कहेंगे मैं डेली केवल 1 या 2 ही लेता हूँ, इवन दैट क्वांटिटी कैन हार्म। सो स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइडेड। अल्कोहल अब आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और मैं स्ट्रिक्टली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताऊंगा कि मेडिकली अगर देखें तो देयर आर मेडिकली सेफ लिमिट्स, अनसेफ लिमिट्स। अब ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आजकल नया डेटा आ रहा है दैट टेल्स अस कि अल्कोहल टेकन इन इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज इज हार्मफुल। बट मैं आपको WHO के गाइडलाइंस बताना चाहूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, it says that 14 units of alcohol, up to 14 units per week is not likely to cause major harm. This is major harm, not minor harm. Minor की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 14 units per week is not likely to cause major harm. अब 14 units यानी कितना? 1 unit is 25 ml of hard liquor, approximately 25 ml. ठीक है, तो इसको आप 14 से गुणा करो, ठीक है, so that becomes 350 ml. अब देख लें, अब आप सब ग्रोन अप एडल्ट्स हैं, आपके सामने कहने में हर्जा नहीं है कि इंडिया में स्मॉल पैक होता है 30 ml, लार्ज पैक होता है 60 ml। हम में से बहुत लोग जो भी ड्रिंक करते हैं, वी ऑफन क्रॉस लिमिट्स। तो अगर देखा जाए, कोई मान लो अगर डेली ड्रिंक कर रहा है तो सेफ लिमिट वुड बी 50 ml, विच इज लेस देन 1 पैक। अब मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें मजा क्या आएगा। तो मैं कहता हूँ कि आपको मजा कैसे आना चाहिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप सेफ कैसे रहेंगे मेरी जिम्मेदारी है। सो द परमिसिबल लिमिट इज ओनली दैट मच। एंड अब ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से 60, 70, 80% आगे जाके ड्रिंक्स लेने लगे, जो कि एक फैक्ट है। पहले स्टूडेंट्स के साथ ड्रिंक्स के बारे में बात करना वाज अ कंप्लीट नो। जब मैं स्टूडेंट था तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट था। बट जमाना बदल चुका है, एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स यू नीड टू नो कि सेफ लिमिट्स क्या हैं। सो रफली इट इज यानी लेस देन 1 पैक पर डे। एंड अगर आप 14 यूनिट्स भी देखते हैं तो इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इन मोर देन 3 सेशंस, नॉट लेस देन 3 सेशंस। यानी अगर हफ्ते में कोई 3 बार ड्रिंक लेता है तो ही शुड बी टेकिंग लेस देन 2 पैक्स इन ए सिंगल सिटिंग। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू टेक इट। ऐसा ना हो कि आप में से जो नहीं ले रहे हैं वो लेना शुरू कर दें कि अरे ये डॉक्टर भाभी ने बोला कि नहीं इतना चलता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नहीं ले रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर
बट कोई अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाकी एडिक्शंस जैसे कैनबिस, वेस्टर्न कंट्रीज में अब कैनबिस आजकल काफी कॉमन है, उसको हम लोग स्ट्रीट लैंग्वेज में कॉमनली वीड कहते हैं। कैनबिस इंडिया में 3 फॉर्म में मिलता है, एक होता है भांग, दूसरा गांजा और तीसरा चरस। भांग इज द मोस्ट डाइल्यूट, भांग जो कि अपने अंकल जी अपने डैडी जी कई बार होली में ले लेते हैं, वेरी डाइल्यूट। गांजा इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड चरस इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपने यूट्यूब में जीनत अमान को दम मारो दम गाना गाते हुए सुना होगा तो दैट इज चरस। ओके, ये जो नकली साधु लोग जो पीते रहते हैं कुंभ के मेले में चिलम से, दैट्स चरस। Here's a matching video. गांजा जो होता है, गांजा सबसे कॉमन है जिसको हम लोग वीड कहते हैं। अब वेस्ट में बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि कैनबिस इज नॉट रियली हार्मफुल, कैनबिस इज मेडिकली हेल्पफुल, उसके मेडिकल इंडिकेशंस ये हैं। मुझे कई लोगों ने कहा है कि डॉक्टर साहब आप अपने लेक्चर्स में कैनबिस न लेने के लिए क्यों कहते हैं, यूएसए के तो कई सारे स्टेट्स में लीगली परमिसिबल है। उसमें मेरा आंसर ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में या बाकी डेवलप्ड नेशंस में जो कैनबिस मिलता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत, कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होता है। जहां बेचा जा रहा है दे एग्जैक्टली नो हाउ मच ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल व्हिच इज इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट इट कंटेन्स। पर इंडिया में वो बात बिल्कुल नहीं है। अपने यहाँ सीधा वो जो उसका पेड़ होता है कैनबिस सटाइवा नाम का, उस पेड़ की पत्तियां तोड़ते हैं, उनको सुखाते हैं, उनको पीसते हैं और वीड बन जाते हैं। सो वी आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि इंडिया में जो वीड मिल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसमें हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है। और लेट मी टेल यू एज अ साइकियाट्रिस्ट कि कैनबिस से होने वाली मानसिक बीमारियां, मेंटल इलनेस काफी कॉमन है। अगर आप गूगल करेंगे और कैनबिस साइकोसिस में भी आप आज करके देख लो, कैनबिस साइकोसिस, साइकोसिस स्पेल्ड एस PSYCHOSIS, इतना टाइप करो और लाखों आपको आर्टिकल्स आएंगे कि कैनबिस कैसे सीवियर मेंटल इलनेस कॉज कर सकता है। और मैंने खुद ने ऐसे अनगिनत पेशेंट देखे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन एडल्ट्स की जो कैनबिस के कारण वो हैव बिकम मेंटली इल। तो जब आप यूएसए जाओगे तो लीगली परमिसिबल कैनबिस जरूर ले लें, पर जहां तक इंडिया का सवाल है आई विल बी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। मेरे पास हर हफ्ते में कम से कम 2-3 कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं। किसी को बैड ट्रिप हो गई थी, वी कॉल इट बैड ट्रिप। बैड ट्रिप का मतलब होता है कि कैनबिस पहली बार ही लिया लाइफ में और ऐसा झटका बैठा, मेंटली पूरा डीरेंज हो गया, चिल्लाने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, कपड़ों की सुध नहीं रही। सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन विद कैनबिस। और बाकी की तो बात ही नहीं करना है, ब्राउन शुगर है, हेरोइन है, बाकी LSD है, ये सारी डेंजरस बातें हैं, उस चक्कर में तो जाना ही नहीं। सो स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस इज इंपॉर्टेंट। और जो 5वीं चीज है out of the 5 golden rules, that is something which I consider as extremely important, और वो है rational thinking. I'll repeat that, rational thinking. Rational thinking का मतलब होता है एक ऐसी थॉट करने की खुद को आदत डालना, ऐसे थॉट्स जो कि रैशनल हैं और इररेशनल नहीं है। अब थोड़ा मैं इस पे इलेबोरेट करना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में डेली ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती है ना, और अपना मूड बदलता रहता है, अपना मूड का ग्राफ अप एंड डाउन होता रहता है। अब जैसे मैं सुबह थोड़ा देर से उठा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, वरीड, है ना। मम्मी ने नाश्ता टाइम पे नहीं बनाया, एंग्री। कॉलेज जाने में देरी हो रही है, एंग्शियस। एग्जाम पास आ गई है, एंग्जाइटी। मेरा भाई मेरी बाइक लेके चला गया, एंगर। मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा जो क्लासमेट है उसकी बाइक मेरे बाइक से ज्यादा अच्छी थी, वो बदमाश हार्ले डेविडसन लेके आया, जेलसी। तो दिन में कई बार अपने मूड अप एंड डाउन होते हैं। अब हम लोग अगर पूछें कि यार तेरा मूड खराब क्यों है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तो आंसर मिलता है कि अरे यार क्या उसने मेरे को ऐसा बोला, मेरे को गुस्सा आ गया, या मेरे डैडी ने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। लेट मी टेल यू कि मैंने कहीं एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा था, दैट इवेंट्स डोंट डिस्टर्ब यू, इट इज योर परसेप्शन ऑफ द इवेंट दैट डिस्टर्ब्स यू। ध्यान से सुने, आई रिपीट दैट, इवेंट्स डोंट डिस्टर्ब यू,
It is your perception of the event, your perception that disturbs you. इसका मतलब है कि लोग या घटनाएं आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि उन घटनाओं को आपने किस नजरिए से देखा, किस दृष्टि से देखा, वो चीज आपको डिस्टर्ब करेगी। मैं फेवरेट एग्जांपल आपको बताता हूं। यहाँ पे जिगी शाह ने अभी बताया कि मैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल या एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पढ़ाता हूं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं कॉरिडोर में जा रहा था और सामने से दो स्टूडेंट्स आए। तो ये दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे किसी प्रोफेसर के कमरे से निकल के आ रहे थे। उसमें से एक का चेहरा गिरा हुआ था, बड़ा उदास सा था, और दूसरा स्माइल कर रहा था। अब मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया। मैंने कहा दोनों एक ही कमरे से निकल के आ रहे हैं पर दोनों का मूड बहुत अलग अलग दिख रहा है। तो मैंने उनको पूछा, जो उदास था उसको पूछा, क्यों यार? मैंने कहा बड़े उदास दिख रहे हो। तो कहता है सर मेरे को डांट पड़ गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो डांट के बहुत डिटेल नहीं पूछा मैंने, बट मैंने पूछा तुमको डांट पड़ी तो तुमको क्या लगा, तुमने क्या सोचा? तो कहता है सर मैं बेकार हूं। मैंने कहा क्यों? कहता है सर हमेशा मेरे को ही डांट पड़ती है, मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। अब जो हंस रहा था उसका दोस्त, उसको मैंने पूछा कि यार तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहता सर प्रोफेसर बेकार है। मैं बेकार नहीं हूं। तो प्रोफेसर ने दोनों को डांटा था। एक ने कहा मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। दूसरा पर है वो तो प्रोफेसर बेकार। अब जो ये कह रहा था कि मैं प्रोफेसर बेकार है, उससे सहमत नहीं हूं। आई हैव नॉट सेड दैट आई एग्री विद हिम, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज प्रोफेसर का डांटना इज नॉट अ रीजन for your sadness, but what you think after you are scolded becomes a reason. You get that? यानी जब भी कोई घटना होती है तो हमारे दिमाग में उसके बारे में कुछ थॉट्स आते हैं। इन साइकोलॉजी दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिक थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स। दोस्त हार्ले डेविडसन बाइक लेके आता, मैं मनी मन कहता हूँ साला इसको कहां से मिल गई बदमाश को, और मुझे जलन होने लगती है। तो अब अगर देखें तो जलन बाइक के कारण नहीं हो रही है, लेकिन बाइक देख के मेरे दिमाग में ये जो विचार आया कि साला इसके पास ये बाइक कहां से आई, तो वहां से मैं अपसेट हुआ। अगर डैडी मुझे डांटते हैं और मुझे गुस्सा आता है, तो डैडी का डांटना डायरेक्टली गुस्सा जनरेट नहीं करता, बट डैडी के डांटने पे मेरे मन में थॉट आता है कि हमेशा ही मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये जो थॉट है कि हमेशा ही मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, ये अपने को डिस्टर्ब कर जाता है। तो एक ये समझ लेना जरूरी है कि जब भी हम लोग अपसेट होते हैं तो इट इज नॉट द एनवायरनमेंट, इट इज नॉट सिचुएशंस, इट इज नॉट पीपल, बट व्हाट यू टेल योरसेल्फ। व्हाट यू टेल योरसेल्फ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब खुद के थॉट्स कैसे सुधारे जाएं, कैसे उसको रैशनल बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिस पे शायद कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग इतना भी अवेयर है कि यार ये मेरी थॉट्स में कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, या मैं जल क्यों रहा हूँ, जलन क्यों हो रही है, मैं उदास क्यों हो गया, और खुद के थॉट्स को एग्जामिन करेंगे तो अपने को वहीं कोई ना कोई कमी नजर आएगी। एंड इफ यू ट्राई टू करेक्ट दैट हेल्प सिग्निफिकेंटली। कुछ थॉट्स हैं जो हम लोग हमेशा दिमाग में रखें तो उससे बहुत बार फायदा होता है। जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेस होकर मेरे पास आते हैं, या क्रॉनिक एंजाइटी में मेरे पास आते हैं, घबराहट की फीलिंग्स लेके आते हैं, और जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, तो 99.9% ऑफ द टाइम्स ये ख्याल में आता है कि जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि रिमेंबर समथिंग व्हिच आई कॉल अ 10-year रूल। अब ये 10-year रूल क्या है? 10-year रूल का मतलब है कि अगर आप किसी डिफिकल्टी में से गुजर रहे हैं, अब स्टूडेंट किन डिफिकल्टीज में से गुजरते हैं? पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, एग्जाम पास आ गई है, मेरी पढ़ाई कम नहीं हुई है, मेरे को कॉलेज में डांट पड़ गई है, गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद कर दिया है, बॉयफ्रेंड किसी और के साथ घूम रहा है, तो इस टाइप की कई सारी बातें हैं। ऐसे में आई थिंक आस्क योरसेल्फ कि ये जो प्रॉब्लम है ये आज से 10 साल के बाद रहने वाला है क्या? आपको डांट पड़ गई है, आपके एग्जाम है, आपकी पढ़ाई कम हुई है, आपको थोड़ा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में से आप गुजर रहे हो, तो क्या 10 साल के बाद ये रहने वाला है? मैं आपको शर्तिया बता दूं कि 99% of the times the problem is not going to persist.
It is what we call as a passing phase. तो अपने 99% problems, they are just a passing phase. This is called looking at things in perspective. Looking at things in perspective. इसका क्या मतलब है कि जैसी मेरी 80-90 साल की लाइफ है, तो मेरी 80 साल की लाइफ में अगर मुझे अभी थोड़ा फाइनेंशियल घाटा हो गया है, अगर इस एग्जाम में मेरे दो बैक आ गए हैं, ठीक है, या मेरा और मेरी मम्मी का झगड़ा हो गया है, तो क्या 80 साल की लाइफ में मैटर करता है? वेरी इजी आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. सो आई थिंक एक खुद को आदत डाल लेना चाहिए. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद को ये आदत डाल ली है. जब भी किसी प्रॉब्लम में से गुजरता हूं मैं, तो मैं यही सोचता हूं कि यार 10 साल के बाद ये प्रॉब्लम रहेगा क्या? एंड आंसर टिपिकली इज ये नहीं रहने वाला. एक और थॉट हेल्प करता है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज अ पैकेज. एवरीथिंग इन लाइफ इज अ पैकेज. उसका मतलब ये होता है कि लाइफ में जो भी चीजें मिलती हैं उसमें कुछ पॉजिटिव रहने वाली हैं, कुछ नेगेटिव रहने वाली हैं. आपको फादर मिले जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन फादर की अपनी वीकनेसेस हैं, कहीं कहीं कमियां हैं फादर में. मदर बहुत अच्छी मिली, पर मदर में कमियां हैं. ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, साला कहां से ज्वाइन कर लिया पता नहीं यार, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितनी मुश्किलें हैं, बैक पे बैक आ रहे हैं, लेकिन इट्स अ पैकेज. उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव है. आप अपने कुछ देख के यहाँ पे ज्वाइन किया है, या उल्टा कह लें कि प्रॉब्लम्स आने लगे और अगर आप सोचो कि यार प्रॉब्लम मुझे आया क्यों कॉलेज में, ये नहीं आना चाहिए था. तो ऐसा है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो लुक एट ऑल द एडवांटेजेस दैट यू आर गोइंग टू गेट एज अ गुड इंजीनियर फॉर 40-50 ईयर्स. और उसमें ये 2-4 साल की अगर मुश्किल आ गई है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज. आई हैव नो रीजन टू कंप्लेन. अब ये यूनिवर्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव रहेगा, है ना. ऐसा रूल कहीं Here's a result from the web. किसी ने बनाया नहीं है कि आपको जो भी मिलेगा 100% पॉजिटिव होगा. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक थिंग्स इन योर स्टेट. कभी इल हेल्थ हो जाएगी, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगे, कभी किसी से झगड़ा हो जाएगा. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. Learn to take it in a healthy way. Learn to look at it as a part of the package. And as I said, in the longer perspective. और 2-3 बातें हैं जो कि हेल्प करती हैं. एक चीज है जिसको मैं काफी मानता हूँ. That is a feeling of gratitude, a frequent feeling of gratitude. Gratitude मैं समझता हूँ आप लोग जानते हैं. ग्रेटिट्यूड समझना ज्यादा इजी है, उसका जो हिंदी वर्ड है उपकृतता वो समझना ज्यादा मुश्किल है. ग्रेटिट्यूड मीन्स बेसिकली यू थैंक गॉड और यू थैंक नेचर और यू थैंक योर लाइफ फॉर सो मेनी गुड थिंग्स दैट यू हैव गॉट. अब जैसे फॉर एग्जांपल सुबह मैं वॉक लेता हूँ, ठीक है, सुबह वॉक लेते लेते जब मैं मेरे घर के अंदर हरियाली देखता हूँ, पेड़ पौधे देखता हूँ, तो आई समवेयर थैंक द नेचर फॉर गिविंग मी द रिसोर्सेज फॉर बीइंग able to create that kind of a lawn at my home. हम लोग कहते हैं take a shot of your surroundings and feel the gratitude. यानी अभी फॉर एग्जांपल मैं जहां बैठा हूं, मेरे बाईं ओर एक अच्छा सोफा सेट पड़ा हुआ है, तो मैं वहां अगर देखता हूं और मैं खुद को कहता हूं यार I should be thankful to whoever, God कह लो, कोई भी कह लो, that I am able to possess this kind of sofa. तो अपने लाइफ में ऐसी अनगिनत चीजें हैं कि जिनके बारे में we need to feel the gratitude. अगर निगेटिव से ध्यान हटा के ग्रेटिट्यूड वर्दी चीजों पे ध्यान लगाया जाए तो आई थिंक इट मेक्स लाइफ मच मोर सिंपल, मच मोर हैप्पियर. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड फॉलो ऑन अ डेली बेसिस. मैं आपको छोटा सीक्रेट बता दूं कि जब मेरी सुबह नींद खुलती है, मैं उठ के बेड के किनारे बैठता हूं, मैं आंख बंद करता हूं और आधे मिनट के लिए कुछ 1-2 चीजें इमेजिन करता हूं जिनके लिए आई शुड बी फीलिंग ग्रेटिट्यूड. तो दैट हेल्प्स. दूसरा एक है, एक बड़ा सिंपल सी चीज है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है. एन एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस. एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस. अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए दूसरे को माफ करने की एबिलिटी मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग बहुत लोगों के बारे में गुस्सा पालते हैं, अपना एटीट्यूड नेगेटिव होता है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत इजीली माफ करते हैं कि छोड़ यार कोई बात नहीं, जाने दो. एंड इसमें मुझे एज अ साइकेट्रिस्ट जरा भी डाउट नहीं है
that this ability to forgive people, it's a fantastic mental asset. उसको मैं mental asset कहता हूँ. कहीं मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा था कि forgiveness should not be a one-time event, but it should be a lifelong attitude. I'll repeat that. Forgiveness should not be a one-time event. यानी जा आज मैंने तुझे माफ कर दिया, ऐसा ना हो, बल्कि लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड. जहां जहां आपको लग रहा है लोगों से गलतियां हो रही है, लोगों ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा आप चाहते थे, फॉरगिव देम. हर आदमी, मैं आपको बता दूं, हर आदमी अपनी अपनी जगह सही होता है और हर व्यक्ति का बिहेवियर, हर व्यक्ति, मैं तो यहां तक जाता हूं कि चोर, डाकू, किलर, मर्डरर, टेररिस्ट, हर व्यक्ति का बिहेवियर अंडरस्टैंडेबल होता है. अंडरस्टैंडेबल है. जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट क्यों बना, उसका बचपन से ग्रूमिंग कैसा हुआ, उसको कैसा ब्रेन वॉशिंग किया गया, वो किस टाइप के सोशल कल्चरल मिलियू में पला बढ़ा है, ऑल दैट डिसाइड्स कि ही इज अ टेररिस्ट. मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता हूं कि अगर मैं एक आधे आईसिस वाले घर में पैदा होता तो मैं बड़ा होकर टेररिस्ट ना होता. आई कुड हैव बिकम, डेफिनेटली. सो आई थिंक मोर एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल, ट्राइंग टू सी टू इट कि लोगों का बिहेवियर इतना उनके हाथ में नहीं है जितना आपको लगता है. एंड देयरफॉर an attitude of forgiveness, I think इससे mental peace बहुत मिलता है. अगर आप forgive करते हैं, you are at a better mental peace. तो ये कुछ बेसिक बातें थी about trying to keep a reasonable mental health. अब थोड़ा लॉकडाउन पे आते हैं, कोरोना पे. एक 4-5 मिनटों में इस पे चर्चा करना चाहूंगा. लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही अनहोनी सिचुएशन है. मेरी मदर 90 साल की है और मेरी 90 साल वाली मदर को मैंने पूछा कि मम्मी आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? कहती है मेरे 90 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था. सो वी ऑल आर पासिंग थ्रू अ वेरी वेरी अनयूजुअल फेज एंड फॉर मेनी पीपल अ डिफिकल्ट फेज. डिफिकल्टीज कैसी हैं? डिफिकल्टीज कई हैं. जैसे घर में लॉकडाउन है, हम लोग, बोर्डम फील होता है, एंजाइटी होती है, कहीं बाहर जाना पड़ा, किसी को मिलना पड़ा तो मुझे कोरोना लग तो नहीं जाएगा. एंजाइटी नॉट ओनली अबाउट योर वेलबीइंग बट ऑल्सो अबाउट योर फैमिली, कि मेरे घर वालों को तो नहीं हो जाएगा कोरोना, मैं किसी इनोसेंट मेरे फैमिली मेंबर, मेरे एल्डरली पेरेंट्स को तो नहीं लगा दूंगा. लॉकडाउन अब अनलॉकडाउन हो रहा है, आस्ते आस्ते लॉकडाउन खुल रहा है, ऐसे में भी कई एंजाइटीज हैं. यानी भले ही अनलॉकडाउन हो गया है पर बाहर जाना लोगों का बढ़ गया है, उसमें एंजाइटी और बढ़ गई है. मैंने देखा है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, दीज डेज दे आर गेटिंग मोर एंशियस. डॉक्टर साहब सड़क पे इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, पहले मैं निकलता था सब्जी लेने तो इक्का दुक्का दिखता था, अब देखता हूं तो धक्का बुक्की का टाइम आ जाता है. सो इंक्रीजिंग एंजाइटी बिकॉज ये दो उल्टी प्रोसेसेस अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पे हुई हैं. अब नोबडी कैन हेल्प इट, देयर आर वैलिड रीजंस फॉर दैट. यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और यहाँ लॉकडाउन कम होता जा रहा है. सो हम लोग बड़े डिफिकल्ट जंक्शन पे हैं और मैं कहता हूँ देयर इज ए सेकेंडरी एपिडेमिक of changed work habits. इतने हफ्ते, इतने महीने घर में आराम करने की आदत पड़ गई थी, अब अचानक बाहर अपने को फॉर मेनी मेनी आवर्स बाहर जाना पड़ा. या कॉलेज खुलेंगे तो अचानक जो आप घर बैठे हुए थे, कभी कभार आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो जाते थे, अब वहां जाके 6-6, 8-8 घंटे बिताने पड़ रहे हैं. तो देयर नीड्स टू बी ए सडन चेंज इन योर डेली हैबिट एंड इवन दैट कैन बिकम स्ट्रेसफुल. जिनके घरों में कोरोना का संक्रमण हो गया है, जो कि क्वारंटाइन है, तो ये तो नेचुरली, यानी ये तो अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट टिल डेट दे आर इन अ माइनॉरिटी, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा. अब हाउ टू हैंडल द कोरोना टाइम्स, इसके कई तरीके हैं. आप लॉकडाउन में हैं, नॉट अ कंप्लीट लॉकडाउन बट पार्शियल लॉकडाउन, तो इसमें कई सारी बातें हम लोग कर सकते हैं. एक तो यह है कि भले ही हम लोग घर पे बैठे हों, बट एक अपने डेली रूटीन का शेड्यूलिंग कर लें. कि सुबह मैं जैसे मान लो 7 बजे उठता हूँ और रात को 11 को सोता हूँ, तो हाउ शुड आई शेड्यूल माय डे. तो अगर मेरा लेक्चर आपको पढ़ गया है तो इन शेड्यूलिंग यू कैन इंक्लूड एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस टाइप की चीजें, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, मम्मी डैडी के साथ बैठ के गप्पे करना, हंसते हंसते बातें करना, मम्मी के साथ ताश खेलना इज समथिंग दैट यू मे नॉट हैव डन फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इज द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. नाउ इज द टाइम टू increase the family times. अब डैडी भी घर पे होते हैं, मम्मी भी घर पे होती हैं, और मम्मी डैडी दोनों समझदार अगर हैं, हमेशा रहते ही ऐसा नहीं है, लेकिन अगर दोनों समझदार हैं तो घर में जनरली टाइम पॉजिटिव रहता है, उसका फायदा उठाएं.
I think this is the time to accomplish certain goals that you can set for yourself. They can be small goals. जैसे मेरी अलमारी लगानी रह गई थी, अब वो मुझे लगाना है, अब मैं लगाऊंगा. ठीक है, अब अलमारी इतनी बड़ी है, उसमें इतने सारे ड्रॉवर्स हैं, एकदम देख के ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन आई गो स्टेप बाय स्टेप. आज मैं ये ड्रॉवर लगाऊंगा, ये हो जाएगा, तो हो सकता है कल परसों अगला लगाऊं. And if you inch slowly, step by step towards a larger goal, so that gives you a sense of accomplishment. You get a feeling कि the time is well spent. यानी वो जो एक, नहीं तो लॉकडाउन में ये एक संभावना रहती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लाइफ में कुछ फ्रूटफुल हो नहीं रहा है. तो ऐसी चीजें अगर हम लोग करते रहें तो एटलीस्ट दैट gives us some sense of achievement that I have been able to do something that I wish to do for a long time. It's a wonderful time to develop a hobby, nurture a hobby. आप कई लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो कोई हॉबी है नहीं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप याद करो कि स्कूल में जब थे तो आप कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे थे. एंड मेनी पीपल विल कम आउट विथ गुड आंसर्स. कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरा क्राफ्ट वर्क अच्छा था, कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरा ड्राइंग अच्छा था, कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरे को हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट था, तो स्कूल के गार्डन को बनाने में मैंने हेल्प किया था, गार्डनर था, वगैरह वगैरह. तो जनरली जिन बातों में हम लोग बचपन में इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं, पर बाद में समय का चक्र अपने को उन बातों को भुलवा देता है, सो दे कैन बी टर्न्ड इनटू हॉबीज. सो यू कैन गो बैक टू दोस थिंग्स एंड स्टार्ट नर्चरिंग इट, फोस्टरिंग इट. एक इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ज्यादा कोरोना का इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें. व्हाट्सएप पे दिन रात कोरोना के बारे में आता रहता है. न्यूज चैनल्स ऑन करो. आजकल सौभाग्य से कोरोना की न्यूज थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मुझे याद है कि अप्रैल और मई में तो सिवाय कोरोना के कुछ दिखता नहीं था. तो बहुत इंफॉर्मेशन लेने की गरज नहीं है. इनफैक्ट आपको बता दूं कि मैं तो खुद केवल जो मेडिकली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उतना ही पढ़ता हूं और बिल्कुल न्यूज देखता नहीं हूं. क्योंकि क्या है कि मोटी मोटी बातें अपने को पता चल जाती हैं. यानी कोरोना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये मेरी मम्मी जब टीवी देखती है तो मुझे बता देती है. ठीक है, नागपुर में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, वो डॉक्टर्स में आपस में बात होती है, मालूम पड़ जाता है. तो इट्स बेटर नॉट टू वॉच न्यूज ऑन कोरोना. इट्स बेटर नॉट टू रीड अपना इंफॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप. अगर आपको रियली ऑथेंटिक चीजें चाहिए तो गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट्स या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट. दीज विल गिव यू रियली क्रेडिबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. ये कुछ बातें हैं और कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जैसे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग आजकल काफी कर रहे हैं. कोरोना के टाइम्स में भी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. इनफैक्ट इट्स अ नोन फैक्ट दैट नंबर ऑफ हिट्स ऑन एनी सोशल मीडिया चैनल हैज मल्टीप्लाइड द वर्ल्ड ओवर मेनी टाइम्स. अब सोशल मीडिया यूज जरूर करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कैसा हो, ये थोड़ा कोरोना टाइम्स में अपने को इस पर ध्यान रखना जरूरी है. सोशल मीडिया में जो आए व्हाट्सएप पोस्ट देख रहे हैं, जो आए वीडियो पूरा देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से फ्रैंकली कहूं तो एक फालतू बातें हैं. इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम. लोगों से सोशली कनेक्टेड अगर आप रहते हैं थ्रू इट, फाइन. कनेक्टेड में भी मेरा रिकमेंडेशन है कि वीडियो कॉलिंग किया करें, क्योंकि वीडियो कॉलिंग इज मोर एकिन टू मीटिंग समवन इन पर्सन. वीडियो कॉलिंग से फिर सामने वाले का एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह अपने को ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर होता है. एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इंक्रीज बोथ द ब्रेड्थ ऑफ योर सोशल कनेक्टेडनेस एंड द डेप्थ ऑफ योर रिलेशंस. ब्रेड्थ ऑफ कनेक्टेडनेस यानी कैसा हो सकता है कि ऐसे कोई 1 2 3 लोग हो जिनको आपको लगता था कि मेरी इनसे पहचान होनी चाहिए, मेरी इनसे बात होनी चाहिए, उनको कॉल करें, उनको बताएं कि हाउ यू एडमायर दैट पर्सन, हाउ यू फाइंड टू टॉक टू दैट पर्सन वगैरह. या डेप्थ बढ़ाएं. डेप्थ कैसे कि जिनको हम लोग बहुत दिनों से फोन नहीं कर पाए हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं. आपकी कोई एल्डरली बुआ जो कि घर में अकेली रहती हैं, आपका कोई कजिन या आपकी कोई भाभी जिनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई है, तो कनेक्ट टू दीज पीपल. So you not only increase the breadth of your connectedness, also the depth of it. एक बात मेंटल हेल्थ में मैंने बताई नहीं पहले कि being socially connected, meaningfully connected is very important. Meaningfully connected यानी मेरे फेसबुक पे 2500 फ्रेंड्स है कि 3000 है, that's not important.
लेकिन ऐसे कितने हैं जिनको फोन करके आप उनसे बातें करना एंजॉय कर पाएंगे? They are meaningfully connected to you. So being socially connected also helps. And digital communities का पार्ट हो सकते हैं आजकल. I think many of you might be knowing कि digital communities क्या होती हैं. ये ऐसे platforms होते हैं कि जिसपे like-minded people they come together and they discuss topics. जैसे if you are say interested in astrophysics, so you can definitely find out digital communities on astrophysics. You can join them, you can chat there, you can share your knowledge, you can gain knowledge. So I think ये कुछ social media के uses हैं which I would say are healthy and which could definitely be followed instead of browsing mindlessly and reading every post that comes to you. अब दोस्तों बातें बहुत सारी हैं कहने लायक, लेकिन समय की पाबंदी है. इनफैक्ट आई थिंक आई हैव overshot maybe by 5 minutes. If I have, I apologize to the organizers for that. और इतना कह के मैं यहाँ बंद करना चाहूँगा. और अनुभव, is there time for question answers or any comments? Yes, sir, we have, sir. Right. So I think we could have questions. I don't know how you are going to do it. You means through chat or you will read out the questions to me या individual मुझे पूछेंगे directly. Sir, we can prefer comment box. Read it out. You say. Yes, sir. Sure. Hello, sir. Am I audible? थोड़ा faint है. अगर आप loud रहे तो ज़्यादा better है. Am I audible? Yeah. Good. Sir, most of the people taking the medicine when they are suffering from the depression. So, is it necessary to take the medicine for mild depression persons? Now that you have said mild depression, my answer is no. Depression अगर mild है तो साइकियाट्रिस्ट भी दवा देना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि माइल्ड चीजें जो होती हैं वो एक तो बहुत ज्यादा ट्रबलसम होती नहीं है, एंड सेकेंडली दे आर जनरली द पासिंग फेज, और दे अदरवाइज रिस्पॉन्ड टू काउंसलिंग. फॉर एग्जांपल मेरा बता दूं कि अगर मेरे पास कोई माइल्ड डिप्रेशन लेके आता है तो मैं उनसे बातें करूंगा और मैं उनको काउंसलिंग लेने का एडवाइस दूंगा. सो दे कैन गो टू काउंसलर, या मेरे पास काउंसलर है वो उनकी काउंसलिंग करेंगी. तो डिप्रेशन अगर माइल्ड है तो मेडिसिन की गरज नहीं है. एंड मेडिकली हम लोग कहते हैं कि गिव मेडिसिन्स ओनली इफ द डिप्रेशन इज मॉडरेटली सीवियर और सीवियर. यानी अगर डिप्रेशन इतना गहरा है कि आपकी नींद कम हो गई है, आपकी भूख बहुत कम हो गई है, आपके दिमाग में डेथ विश आ रही है, सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, आप किसी भी चीज को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट्स द काइंड ऑफ सिनेरियो जब हम लोग मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन कहेंगे, तो वहां पे मेडिसिन ओके है बट नॉट फॉर माइल्ड. या So there's a question from Miss Nikita Pandey. She's saying that some people claim that they get same amount of rest from 2 hours of sleep that generally people get from 8 hours of sleep. So is it possible? From 2 hours of sleep? Yes, sir. नहीं, वो पॉसिबल नहीं है. ये जो कम स्लीप में काम हो जाता है ना, so that is something that is called power nap. अब डे टाइम में ठीक है ना, डे टाइम में समटाइम्स मेनी पीपल एक्सपीरियंस है कि 5 मिनट का पावर नैप, 15 मिनट का पावर नैप, आधे घंटे का पावर नैप, इट डज है. क्या है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स जो इवॉल्व हुए हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वी आर होमो सेपियंस. तो होमो सेपियंस जो इवॉल्व हुए हैं ना, तो अपना स्लीप साइकिल बायफेजिक कहलाता है. बायफेजिक यानी एक रात को और एक दिन में. अब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड लाइफस्टाइल दिन में नींद लेना पॉसिबल नहीं है, पर दिन में नींद का एक पीक आता है जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं. टिपिकली लेट मॉर्निंग या आफ्टरनून में वो पीक आता है, तो उस टाइम पे अगर आप ड्राउजी फील कर रहे हो और आधा घंटा सो लिया तो काम बन जाएगा, यू डू फील गुड. बट अगर आप कहें, आई थिंक द क्वेश्चनर वांट्स टू आस्क मी कि 24 घंटे में 2 घंटे, अगर वैसा है तो द क्लियर आंसर इज नो, एब्सोल्युटली. ये बता दूं, एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें काफी कम नींद लेके भी ब्रेन का काम चल जाता है, बट इट्स अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन. आप कुछ लोगों के बारे में सुनेंगे कि ये केवल 4 घंटे सोते हैं बट ही इज फ्रेश एंड ही डज क्वाइट वेल. देन मे बी ही फॉल्स इन दैट वेरी वेरी स्मॉल 0.01% पीपल जिनकी बेसिकली नींद की रिक्वायरमेंट कम है, बट फॉर 99.99% ऑफ पीपल लाइक अस 7 घंटे 8 घंटे, नॉट लेस देन दैट. Anything else? So there's one question from Pawan.
He says how to identify if you are just depressed or just sad. If you're just depressed or just sad, okay. Can you do one thing, Anubhav? Yes, sir. क्वेश्चन पूछने वाले का नाम अनाउंस मत करो, Okay, sir. क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ी एनोनिमिटी कम हो जाती है एंड दैट डिसुएड पीपल फ्रॉम आस्किंग. होता है Sir, ना? actually, chats public है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है. Okay, If anyone wants to send anonymous question, they can DM me right, ठीक है. on WhatsApp. So the question was कि how to identify if I'm sad or depressed. Yes, sir. Yeah. अब ये दोनों वर्ड्स में थोड़ा एक फर्क है, ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि फीलिंग सैड यानी मैं उदास महसूस कर रहा हूँ. फीलिंग सैड इज ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. एवरीबडी फील सैड. हो सकता है डेली अपने लाइफ में कुछ ऐसे पल आ जाएं जबकि हम लोग सैड फील करते हैं, which is completely okay. It depends on the environment. But when as a psychiatrist or as a psychologist I say depressed, that refers to a depressive illness. क्योंकि जब भी मैं मान लो किसी मेरे साइकियाट्रिस्ट कलीग को बता रहा हूँ कि यार फलाफला डिप्रेशन में है, what I am communicating is कि he is suffering from depressive illness. So depression word अगर हम लोग देखें तो it's a cluster of symptoms. It's a collection of symptoms like loss of sleep, loss of appetite, feeling low most of the time, lacking in enthusiasm most of the time, getting suicidal thoughts or feelings of futility of life, not being able to concentrate, not being able to enjoy anything, having lost your enthusiasm for most of the things. तो जब एक क्लस्टर एक साथ होता है ना, तब उसको डिप्रेशन कहेंगे. सो सैडनेस और डिप्रेशन इन दो में डिफरेंशिएट करना जरूरी है. डिप्रेशन हम में से सबको नहीं होता, सैडनेस हम में से सभी को होती है. आई होप दैट आंसर्स. Yes. Yeah. So there's another question, but I am not able to understand it. The question is, do visualization works? Yeah, I'll explain that. उसका मतलब क्या है? There is something called visualization, or it's also called creative visualization. Visualization basically means कि generally आप आंखें बंद करके there could be two things. एक होता है कि you imagine something that you want to happen. अब जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं सुबह विजुअलाइजेशन कर सकता था. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसा कि मैं 5 मिनट आंखें बंद कर लूं और मैं इमेजिन करूं कि मैं बहुत धड़ल्ले से बहुत कॉन्फिडेंटली भाषण दे रहा हूं, ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत तारीफ हो रही है. अब हो सकता है ये सब यहाँ पे ना हो, बट देन इफ आई काइंड ऑफ इमेजिन दैट विजुअली, अपने दिमाग के अंदर अगर मैं देखूं कि ये सब हो रहा है, तो लेट मी टेल यू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्चुअली हैपनिंग इंक्रीजेस. मेरी एग्जाम अगर सामने है, मैं अगर आंख बंद करके डेली 5 मिनट विजुअलाइज करता हूँ कि पेपर आया है, क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैंने आंसर लिखे हैं, आंसर बहुत अच्छे से लिखे हैं, ठीक है, फिर जब रिजल्ट आया मुझे मार्क बहुत अच्छे मिले हैं, मेरी तारीफ हो रही है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो लेट मी टेल यू दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. अब उसका ये मतलब नहीं कि मेहनत मत करो तो विजुअलाइज करते रहो, वैसा नहीं होगा, मेहनत एसेंशियल है, but then visualizing anything increases the possibility of that happening. And second मतलब है कि you visualize something which can create calm and peace. Like meditation करते समय जो visualization होता है उसमें आप आंखें बंद करो, आप imagine करो कि आप गोवा में सी बीच पे हो, सामने बड़ा समुंदर है, लोग बीच पे बहुत ही कम है और सनसेट हो रहा है, बहुत ही पीसफुल माहौल है, पक्षियों की आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है. So that's a kind of visualization that induces calmness. So visualization does help, definitely. Yani, if you practice it regularly, it does help. Yeah. Anything else? So there's a personal question of mine. Yeah. Generally, people tell us that if you have someone depressed, some depressed person around you, you can go and talk to them. But what nobody tells is what to actually talk about. Like we can just ask them, are you depressed or not? Yeah. That's a very good question. कोई अगल बगल में डिप्रेस्ड है ना, तो उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं. लोग कई बार गलत बातें ज्यादा करते हैं कि अरे उदास काहे को होता है यार, लाइफ तो हंसने के लिए है, मस्त रहो, एंजॉय करो, चल 2 पैग लगाते हैं, ठीक है. सो दीज आर द कॉमन रिस्पॉन्सेज कि तू फालतू ही डिप्रेस होता है और उसमें ऐसी क्या बात है.
these things just do not help. ये sentences खोखले होते हैं. I think a better way is कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए डिप्रेस्ड है तो forget it, leave the person alone. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको दिखता है कि आपका भाई या आपकी बहन पिछले 2-4-5 दिनों से लो मूड में दिख रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, चुप चुप है. I think a good way would be that you sit with the person and tell him or her कि I can see that all does not seem well with you. Can I help you in some way? Can I help you? Is there anything that I can do to help you? हो सकता है वो पर्सन ना बताए. अगर ना बताए तो आप थोड़ा कोक्स कर सकते हो कि seeing you upset makes me upset, and I think it will help both of us if we share more things. So I'll be happy to help you. और डिप्रेस्ड पर्सन जो भी बताता है ना, जनरली बता देते हैं, तो उसको ट्रिवियलाइज न किया जाए. टू ट्रिवियलाइज मीन्स कि अरे यार तू इतनी सी बात को लेके इतना उदास है, यार इसमें क्या हो गया, ये तो हर एक के साथ होता है. नेवर डू इट, क्योंकि जिसका दुख वही जानता है, जिसकी साइकोलॉजिकल रिएक्शन है वही जानता है. सो नेवर ट्रिवियलाइज इट, एम्पैथाइज विद द पर्सन, से दैट आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि तेरे को डैडी ने डांट दिया तो आई नो हाउ यू आर फीलिंग, आई एम विद यू. तेरी जगह मैं भी अगर होता तो मैं शायद इसी में से गुजरता. सो reassure that you are able to understand him, you want to help the person. I think that's the way we should open the dialogue. और उसमें बहुत सारी बातें हैं that you take the person to a counselor or maybe someone wise who can maybe explain things in a better manner or something. Yeah. So there's a question Yeah. which is like, why is mental health care expensive, and why hasn't it been made affordable, especially in this global pandemic when there is increased number of people going through mental health? Right. अब एक्सपेंसिव बहुत ही रिलेटिव वर्ड है. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया में डर्ट चीप है, डर्ट चीप. और फॉर एग्जांपल आप अगर वहां पे साइकोथेरेपी लेते हैं तो एक सेशन का 1 घंटे का $150 लगता है. अब $150 को 70 या 75 से गुणा करो तो कैलकुलेट कितना होता है. Yes, sir. इंजीनियरिंग वाले हैं, that turns out to be too costly. आप साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन लो तो दैट माइट कॉस्ट यू $100, $200, यानी इंडिया के टर्म्स में 7,000 रुपए, 14,000 रुपए. इंडिया में साइकेट्रिक कंसल्टेशन इज इनफैक्ट चीपर देन अदर मेडिकल ब्रांचेस. अब मैं बाकी मेडिकल ब्रांचेस कंपेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल टॉकिंग होता है, या तो टॉकिंग है या प्रिस्क्राइबिंग है. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू पे इज ओनली द फीस ऑफ द साइकेट्रिस्ट, और मेडिसिन का जो भी खर्चा हुआ 400-500 रुपए महीने का. कोई बड़े प्रोसीजर्स नहीं है, कहीं कोई ट्यूब्स डालनी नहीं है, कहीं कोई ऑपरेशंस करने नहीं है. तो वैसे देखा जाए तो साइकेट्री एज कंपेयर टू अदर मेडिकल ब्रांचेस इज मच मोर चीप. एंड देन अगर कोई रियली नीडी है तो इसमें 2 बातें हैं. देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर फ्री ट्रीटमेंट. अगर आप फॉर एग्जांपल नागपुर में, अगर आप इफ यू गो टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इफ यू गो टू IGMC इन गांधीबाग एरिया, तो वहाँ कंप्लीटली फ्री है. इफ यू गो टू लता मंगेशकर कॉलेज तो वहाँ बहुत ही नॉमिनल फीस है. या इवन इफ यू गो टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर एंड इफ यू टेल कि डॉक्टर साहब मेरी इतनी हैसियत नहीं है, कैन आई पे लेस, 100% पीपल विल टेल यू नहीं, कोई प्रॉब्लम, इट्स क्वाइट ओके. सो कॉस्टली है ऐसा मैं कहूँगा नहीं इंडिया में. Yeah. So we'll take last 2 questions. Sure. One is how to deal with mental saturation, as in not being able to focus or take interest in any activity. So how to deal? By mental, जब हम लोग saturation कहते हैं तो उसका मतलब बेसिकली होता है कि इतनी बातें जमा हो गई हैं कि और कुछ घुस नहीं रहा है ना. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे पढ़ाई को लेके पढ़ते पढ़ते एग्जाम सामने आ गई है एंड स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आई गॉट मेंटली सैचुरेटेड, अब मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ. मेरा स्ट्रेट आंसर यह होगा कि काम के टाइम काम, रिक्रिएशन के टाइम पे रिक्रिएशन. फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम है और आप दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हैं. व्हाट आई सजेस्ट इज दैट ब्रेक इट अप इनटू पार्ट्स. आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट मौज मस्ती करो, घूमो घामो, थोड़ा टीवी ऑन कर लो, किसी के साथ मस्करी कर लो, मजाक कर लो, शरबत पी लो. ठीक है. हैव ब्रेक्स. तो अगर ब्रेक्स के साथ अगर आप करते हो ना तो मेंटल सैचुरेशन होने के चांसेस बहुत कम है. अब क्या होता है कि हमें से हर एक की कंसंट्रेशन का स्पैन बहुत अलग होता है. मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 6-6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते हैं, और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 15 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस बैठ नहीं सकते.
बोथ आर नॉर्मल। मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 घंटे बैठने वाला बहुत गुणी है और केवल 15 मिनट बैठने वाला प्रॉब्लमेटिक है। आपका हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अपने हाथ में नहीं होता, वो सब ब्रेन का खेल है। तो इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बियॉन्ड हाफ एन आवर, जस्ट गेट अप, लीव द चेयर, 10 मिनट यहाँ घूम घाम के आ जाओ, बट घूम घाम के आओ, ब्रेक लेने और वो ब्रेक ही ब्रेक हो गया। So I think taking frequent breaks, doing something that you find enjoyable, daily कम से कम हमने आधा घंटा केवल रिक्रिएशन के लिए निकालना बहुत जरूरी है डेली। यानी अब आप आधा घंटा अरिजीत सिंह के गाने सुनो, आप अपना यूट्यूब पे कोई फेवरेट वीडियोस देखो, आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से गप्पे करो, बातें करो, झगड़ा मत करो उस समय। यानी द मोर पॉजिटिव द थिंग्स आर द बेटर इट इज। So I think frequent regular recreation, taking frequent breaks, I think this is something that can prevent saturation. Yeah. So there's a question that how to deal with FOMO. FOMO, fear of क्या full form क्या उसका? Fear of missing out. Fear of missing out. थोड़ा यार elaborate कर दो, ये नई टर्म है। Missing out on what? Sir, like for example, our friend is doing something and we think we should do it, but it's not really necessary. But we feel that we'll miss out if we don't do that. For example, if one of our friends has opted for a tuition, and it's not that really necessary, but we think that we'll miss out. So how can we, overcome that? देखो मेरे ख्याल से यानी मैं सोच रहा हूँ कि इफ आई फेस अ सिमिलर सिचुएशन मैं क्या करूंगा। पहला तो मैं ये देखूंगा कि वो जो भी कर रहा है तो इज इट ऑल्सो असेंशियल फॉर मी। ठीक है, इसका आंसर हमेशा हाँ होगा ऐसा नहीं है। जैसे मान लो फ्रेंड लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू गो फॉर सम रीजन, तो आई थिंक कि मेरे लिए क्या ये जाना असेंशियल है। अगर असेंशियल नहीं है तो माय एडवाइस वुड बी डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज जो रियली वरीज होती है ना, दे शुड मोर बी अबाउट थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या असेंशियल। सो मेरे लिए रियली असेंशियल है क्या, पहला सवाल। सेकेंडली, क्या मैं थोड़ा जोर लगा के मेहनत करके उसको प्रायोरिटी में अपने ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है, वी ऑल नो हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स इन लाइफ। यानी हो सकता है मेरे दिमाग में और कुछ है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं वहां पर नहीं जा पा रहा हूँ। सो आई थिंक आई नीड टू री-इवैल्यूएट माय प्रायोरिटीज कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आई थिंक फिर इसको इंपॉर्टेंस कम दो। एक हम में से बहुतों की साइकोलॉजी होती है कि जो अपने हाथ में नहीं है वो ज्यादा कीमती लगता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हम तो कहते हैं। तो फ्रेंड्स पार्टी एंजॉय कर रहे हैं पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो वो बहुत दुख होगा। जबकि एक्चुअली जो पार्टी में गए हैं उनको इतना मजा नहीं आएगा, अगर उनको एक्स मजा आया है लेकिन आपका दुख 2x होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन नीड नॉट बी एज एंजॉयबल एज यू थिंक व्हेन यू आर लाइकली टू मिस इट। और अगर आपको लगता है कि वो आपके करंट जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक चेंज द प्रायोरिटीज, यानी जस्ट गो फॉर इट। यानी आपने पढ़ाई करने का तय किया था लेकिन दोस्त वहां पे मिलने वाले हैं, इफ यू थिंक कि यार ये 1 घंटा पढ़ाई मैं बाद में कॉम्पनसेट कर दूंगा डेफिनेटली, तो आई थिंक दोस्तों के साथ अभी बैठना सीम्स टू बी बेटर। गो फॉर द फ्रेंड्स, यानी वो 1 घंटा जो पढ़ाई का है देन ट्राई टू कॉम्पनसेट इट समवेयर एल्स। सो आई थिंक दैट्स द वे आई थिंक फॉर इट। So we'll end this with last question because this is kind of personal question, I think. Okay. There's a question that there's my friend, she has much tension or so she get depressed and severe headaches and fever kind of. So how can I help her from getting this out of the situation? I think एक तो जैसे मैंने कहा, यानी it's important to open the dialogue with her. अगर वो डिप्रेशन ऑलरेडी कन्फेस कर चुकी है that she is feeling depressed and she is not feeling good, तो एक कदम और एक स्टेप अपन आगे चले गए। If she is not confessing about it, then जैसे मैंने कहा, you better at some time when you have some time at your hand, talk to her calmly, empathize with her, show to her that you are able to understand her, not trivializing her depression. अगर she has discussed about the depression with you, तो I think वो एक रोटरी का एक बड़ा अच्छा एक उनका स्टेटमेंट होता है कि oh God, give me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the ones that I can, and the wisdom to know the difference. तो ये बहुत जगह स्ट्रेसफुल इसमें लागू होता है।
Like if she is depressed because of some reason which is under her control, I think give her the courage to change the situation. मान लो parents ने कुछ कहा which she is not able to handle, then you can advise her that you can tell this to the parents. Be assertive. What you want in life is not यहाँ situation का मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँ, but then an example दे रहा हूँ कि be assertive, state what you want to achieve, and be very clear about it. So try to get courageous, try to change the circumstance. और अगर circumstance change करना possible नहीं है, तो आई थिंक 2-3 ये फिलोसॉफीज काम में आती हैं कि ठीक है, लाइफ इज अ पैकेज, जैसे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है, वी हैव टू लर्न टू टेक थिंग्स इन आवर स्ट्राइड. हर चीज को हम चेंज कर नहीं पाएंगे, एंड ट्राई टू टेल हर कि इट्स अ पासिंग फेज, यानी भले अभी प्रॉब्लम है बट इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर योर एंटायर लाइफ. सो दैट्स द वे यू कैन आइदर हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम और यू कैन हेल्प हर कम टू टर्म्स विद इट so that it becomes more painful. So that's a kind of general advice I can give. Thank you so much, sir, for informative session. So we would like to end by giving vote of thanks. Ayush, एक second. Yeah. Good morning, sir. So I have a question. Now, because of Corona, people are running out of job opportunities or career opportunities. Yeah. So that is affecting students' mental health. It's affecting me too in several ways. So how should I deal with that? I'm working on it. I'm trying to contact many people for getting the work done and everything, but still nothing is happening. So how to deal with that kind of negativity? If you could help me with that, that would be great. I know. I think it's a very important question. इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब इसमें अगर मैं प्योरली साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आई थिंक जो मैंने पहले मेंशन किया था कि वन हैज टू टेक रिपोर्ट टू द पैकेज थियरी. नाउ दिस इज समथिंग दैट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई है, देन पीपल आर बीइंग लेड ऑफ, कंपनी डज नॉट वांट टू एम्प्लॉय टू मेनी पीपल. आई थिंक दिस इज अ क्लासिक सिचुएशन जो कि अपने हाथ में नहीं है. So I think accepting it as a part of the package of life कि ठीक है डिफिकल्टी है, this is something जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. अगर मेरा कंट्रोल होता तो मैं इसको बदलने की कोशिश करती, लेकिन फैक्ट है कि मेरा कंट्रोल नहीं है. And in spite of these difficulties, I'll try to stay calm. I'll try to follow all the recommendations for good mental health and let me see. Ultimately, things will change. जैसे मैंने कहा कि look at things in perspective. यानी आपकी 80, 85, 90 साल की लाइफ में ये कोरोना टाइम इज ओनली अ स्मॉल पैच, वेरी स्मॉल पैच. सो डोंट वरी, यानी अगर आज नहीं मिल रहा है तो कल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, राइट? Thank you, sir. Do you have any other questions? Anyone? कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कोई बहुत प्राइवेट क्वेश्चन रहा तो मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है जिसको ये प्रॉब्लम है. वैसा करके भी पूछ सकते हैं. Hello. Yes, sir. आपकी पोल नहीं खुलेगी. Hello. Yeah. My question is, does the surrounding around us affect the mental health? See, I think the answer lies to a large extent in what I've said earlier. That मैं फिर से वो सेंटेंस दोहराऊंगा कि it is not the situations or people that disturb you, but it's your own thinking that disturbs you. Surrounding से फर्क पड़ता है. Surrounding acts as a trigger. There is no doubt. Surrounding acts as a trigger. मेरे घर में गरीबी है तो मेरे घर की गरीबी एक ट्रिगर बन जाती है. मेरे फादर अल्कोहलिक हैं और घर में आके झगड़ा करते हैं, वो मेरे लिए एक ट्रिगर है. ठीक है. मेरे को फ्रेंड ऐसा मिला है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो एक ट्रिगर है. ठीक है. सो दीज आर ट्रिगर्स, लेकिन हाउ मच शुड वी अलाउ द ट्रिगर टू टेक ओवर अस, ये अब सवाल अपने सामने. जैसे भले ही आपके आसपास ट्रिगर्स हो, जैसे आपने कहा एनवायरमेंटल डिफिकल्टीज हो, लेकिन उस डिफिकल्टी को मैं किस ढंग से देखूं, मैं उसके बारे में क्या सोचूं, तो दैट लार्जली डिसाइड्स वेदर आई गेट डिस्टर्ब्ड बाय इट और आई एम एबल टू फेस इट करेजियसली. सो एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट योर ओन थॉट इज मोर इंपॉर्टेंट. Do we have any other question, or we would end if no one is there? I think we should end. Ayush. Okay, sir. Thank you so much, sir, for this informative session. So we would like to end with a vote of thanks. Tanaya, please take over.
Thank you very much, sir, for your valuable time and sharing your precious knowledge. We'll always be grateful for this emphatic and outstanding session. It's okay to be in bad mental health, but it is important you know how to react to it. Yes, that's true. We were enlightened with many such points which were never focused upon. The need to exercise and reduce the use of screens are some of the very important things. Sir also enlightened us with the 5 golden rules that should be strictly followed to boost our mental health. We look forward to having more such sessions in the future. Special thanks to Students Representative Council for coordinating with the TBI Foundation for bringing up this wonderful event. We end this session by shedding light on TBI. RCOEM TBI Foundation is a company established at RCOEM to give momentum to innovation, entrepreneurship, and incubation support related activities. It is a flagship initiative of the Institute intended to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the region that will drive sustainable economic growth and generate employment opportunities, inculcate entrepreneurship and new venture creation based on innovation technology. Our objective is to provide a platform for speedy commercialization of technologies developed in the host institution and to provide networking between academia, industry, and financial institution. To know more, one can check out our Instagram, Facebook, and Twitter pages shown on the screen. Thank you so much, Dr. Sudhir Bhave, sir. Best wishes to all, and I thank you all on behalf of RCOM TBI Foundation and Students Representative Council. In fact, I would Thank you, sir. Thank you, Bhave, sir. Thank you so much. Thank you so much. It was a great pleasure, and thanks for the opportunity. Thanks for all. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye bye.